We are going to discuss this regulatory part or quality assurance part. They are only going to ask you one or two question from this part. So आपका जो क्वालिटी एश्योरेंस है या फिर आपका रेगुलेटरी अफेयर्स जो है सिर्फ आपको दो क्वेश्चंस आने वाला है एग्जाम में. टू क्वेश्चंस, वन और टू क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकता है उसमें से. सो कितना आएगा? मैक्सिमम क्वेश्चंस थ्री. तीन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता पेपर में इसके बारे में. मैक्सिमम आ गया तो तीन क्वेश्चन, कम से कम एक आएगा, मैक्सिमम तीन आएंगे. सो फॉर थ्री क्वेश्चंस वी हैव टू deal with the subject. So we are not going to take each and every part because it is a theoretical subject and there is no concept in this. You have to mug up the things, you have to remember things. Okay, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं होता है, आपको याद ही रखना पड़ता है कि कौन सा गाइडलाइन किसके लिए है, इसका एजेंसी क्या है, ऑरेंज बुक क्या है, ब्लू बुक क्या है. ओके, व्हाट इज मीन बाय एनडीए, व्हाट इज मीन बाय एएनडीए. So drug regulatory affair part first. So I have named this part first because I think whatever today's session is that, so in that session some additional points will be considered. So that's why I am considering the two parts. So this will be part first of drug regulatory affair and part second में थोड़ा सा कुछ. So DRA part first, drug regulatory affair part first. We are going to see only important points which are very very important कि जिसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं. ठीक है. So those part which already they have been asked in the exam like GPAT, NIPER, DI pharmacist, those part only will be discussed over here. So first we will discuss OECD guidelines. OECD guidelines, what are these? These are nothing but the standard guidelines given by organization economic cooperation and development. Organization economic cooperation and development. So this is the organization which gives guidelines for the testing of your drugs and chemicals in the animals means including humans. So these OECD guidelines, these are the set of guidelines given by Organization Economic Cooperation and Development, OECD. These guidelines are accepted internationally. So every country accept these guidelines, and without these guidelines, you cannot do your clinical testing. Okay, suppose that you have synthesized or suppose that you have isolated one compound or one new chemical entity or new drug. Either you have synthesized in the lab or you have identified it from the plants and extracted it. You have done the preclinical studies. First you have to do preclinical studies. You have to test your newly synthesized or newly isolated drug in the animals. So in the small animals or in the large animals. Small animals like mice, okay, rat, then frog, then large animals like dogs, guinea pig, rabbits, okay, monkeys. So these are the log animals: dogs, cats, monkeys, guinea pigs, etc. Small animals like mice, rats, and frogs, okay, guinea pigs. These are the small animals. Once you have identified new chemical entity or new drug or synthesized a new drug, you have to test it for pharmacological actions in the animals. That study is known as a preclinical study. इसको बोलते हैं प्री क्लिनिकल स्टडीज. तो क्लिनिकल मतलब क्या? सो जब ह्यूमंस में यूज करेंगे उसको बोलते हैं क्लिनिकल स्टडी. सो नाउ फॉर दैट पर्पज OECD guidelines are there. These are the set of guidelines which are given and accepted worldwide, internationally, for the testing of chemicals and drugs in the humans and was published in the 1981. Guidelines are applicable for animals as well as humans. तो एनिमल के लिए उसका एक सब पार्ट होता है कि एनिमल इथिकल कमेटी, उसका परमिशन लेना है. बट अकॉर्डिंग टू whatever dose you are giving to that animal, whatever testing you are doing on that animal, that should be according to the OECD guidelines. So these OECD guidelines are nothing but the guideline to test a drug or chemicals in the humans, and it is given by a set of guidelines given by Organization Economic Cooperation and Development, OECD. Organization Economic Cooperation Development, OECD. These guidelines are accepted internationally and was first published in the 1981. So they can ask direct question. OECD guidelines was published in 1981. So remember 1981 में फर्स्ट टाइम OECD ने गाइडलाइंस दिया था, आपका पब्लिश किया था, और उनको ड्रग जो भी रिसर्च कर रहे हैं उनको बोला था कि यू हैव टू टेस्ट योर न्यू ड्रग और केमिकल on the animals by using these guidelines, by following these guidelines.
ये गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ही आपको टेस्ट करना पड़ता है ड्रग्स एंड केमिकल. So details, if you want to read the details, you can read from books, any book of quality assurance or OECD guidelines. You just search OECD guidelines in the Google, you will find all that. That is not important for your GPAT. So guidelines, these OECD guidelines, okay, so they are designated, they are given in the 3 digit number. ये गाइडलाइंस 3 डिजिट नंबर में देते हैं. जैसे यहाँ पे एक है, मान लीजिए 001 001. So these guidelines has given numbers in a 3 digit. जैसे 001 हो गया, 3 डिजिट का नंबर रहेगा इसका. So guidelines given in the 3 digit number, first digit of these guidelines indicate the section number. So section number, for example, section 4. Section 4 is for acute toxicity. OECD guidelines 420. That means they are for acute toxicity studies. Fixed dose process. OECD guidelines are divided into 5 sections. So we'll see what are the different sections of OECD guidelines. इसके बारे में क्वेश्चन आता ही आता है. अप एंड डाउन प्रोसीजर किसमें है, एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडी किसमें है, ये सब. So these OECD guidelines, they are divided into 5 sections. Section 1. Section 1 is nothing but the section 1 is the physico-chemical properties of drug. So in the section 1 of OECD guidelines, so physico-chemical properties of drugs are given. Physico-chemical properties of drug are given. So जैसे मान लीजिए यहाँ 420 है, तो यहाँ पे अगर 120 होता है, यहाँ पे 420 है, 120 अगर होता है तो उसका आएगा फिजिको ओएसडी गाइडलाइंस. किसके लिए आएगा, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग उसमें. सो दिस 4 इज नथिंग बट द फर्स्ट डिजिट इज नथिंग बट द सेक्शन. सो सेक्शन 1 covers the guidelines related to physico chemical properties of. Section 2 under OECD guidelines, it is nothing but the effect of drug and chemicals on the biotic system or biological system. Effect of drug and chemical on the biological system. So that is covered under section 2 of OECD guidelines. Section 3 of OECD guidelines. Degradation and accumulation of chemicals and drugs. Degradation and accumulation. जो impurities होता है या फिर metabolic मतलब degradation product होता है वो, that is going under section 3. Section 1 of OECD guidelines deals with the physicochemical properties of drug. Section 2 deals with the effect of drugs and chemicals on a biotic or biological system. Section 3 of OECD guidelines deals with the degradation and accumulation of chemicals or drugs. Section 4 deals with the effect on health. Section 5 deals with the other test guideline. अभी देखो यहाँ पे section 4 क्या है, effect on health. Section 4 is nothing but the effect on health, and that's why section 4. So here is a, for example, OECD guidelines 420. OECD guideline जो है 420 गाइडलाइन जो है उसका मीनिंग क्या होता है, ये 4 जो है फर्स्ट डिजिट, दैट इज द डिजिट फॉर सेक्शन. सो सेक्शन 4 गाइडलाइन, रेस्ट ऑफ द 20 इज नथिंग बट द गाइडलाइन नंबर 20. सो 420 मींस acute toxicity studies, fixed dose combination. ये बाद में आपको. So remember, effect on health is given in the section number 4 of OECD guidelines. We will see the next. Okay, so OECD guidelines, we have seen there are different sections of OECD guidelines, 1, 2, 3, 4. So under these, okay, now there are different guidelines. Okay, now OECD guidelines for health, because that is most important. OECD guidelines for testing of toxicity studies. OECD guidelines for testing of toxicity studies. OECD guidelines for testing of toxicity studies or health effect of the drug on health of animal or humans. So these are the different studies under OECD guidelines. Under section 4. Under section 4 of OECD guidelines, different guidelines are there. Okay? Guideline number 401, 402, 403 like that. So we'll see individually one by one. आवाज येतो ना व्यवस्थित. So guidelines, I have listed guidelines, then description of the guidelines and description. So first one is a guideline, OECD guideline 401. So 401 is nothing but the acute oral toxicity studies. Acute oral toxicity study. एक ही डोज देना है उसको, उसमें कितना टॉक्सिटी होता है, कितने एनिमल जिंदा रहते हैं, कितना मरते हैं. सो यू हैव टू चेक दैट. सो OECD गाइडलाइंस 401 और 401, 401 क्या है, एक्यूट ओरल टॉक्सिटी. ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है. 401 इज एक्यूट ओरल टॉक्सिटी. अभी इसमें कोई ये नहीं है, ट्रिक वगैरह यूज नहीं कर, यहाँ पे लगते ही नहीं कुछ, क्योंकि इसमें सब एक्यूट एक्यूट लिखा है. सो यू हैव टू रिमेंबर. पहला क्या है, 401 ओरल टॉक्सिटी स्टडी, एक्यूट ओरल टॉक्सिटी स्टडीज. 402 guidelines under OECD is nothing but the acute dermal.
तो पहले सबसे पहले क्या आता है, मुंह आता है आपका, तो ओरल टॉक्सिटी। बाद में क्या आता है आपका, स्किन, तो बाद में डर्मल टॉक्सिटी। सो 401 इज ओरल acute toxicity study. Okay, then 402 is acute dermal toxicity. OECD guidelines for the toxicity. Okay, toxicity in the animals. OECD guidelines for determination of toxicity of your drug. आपका जो ड्रग है नया सिंथेसिस किया है या फिर नया आपने आइसोलेट किया है, तो उसको पहले चेक करना है कि टॉक्सिसिटी कितना है, क्योंकि पहले टॉक्सिसिटी आपको देखना पड़ेगा। इफ दैट इज टॉक्सिक देन यू हैव टू that your drug is useless. If it is tolerable in the human, then only you have to do further studies. So first you have to do toxicity. So that is given under the section 4 of your OECD guidelines. So under that different guidelines are there. First one is a 401 or 401, that is acute oral toxicity study. 402 is acute dermal toxicity study. 403 is acute inhalation toxicity. 403 क्या है, inhalation. 404 क्या है, acute dermal reactions, irritation and corrosion reaction. वो अगर है तो उसको बोलेंगे 404. So 404 guideline is for the acute dermal reaction, irritation and corrosion. 405 is acute ocular reaction, जो आईज में होता है. ocular reaction मतलब अगर कोई ड्रग का आई ड्रॉप बना के आई में डाला तो उसको रिएक्शन नहीं होना चाहिए. सो उसका इवेल्युएशन करने का जो गाइडलाइंस है, टेस्टिंग प्रोसीजर वगैरह सब. 405 ओईसीडी गाइडलाइंस 405. 405 में क्या दिया है, एक्यूट ओक्यूलर रिएक्शन. 400, ओके, 405 में एक्यूट ओक्यूलर रिएक्शन. 406 में क्या दिया है, स्किन सेंसिटाइजेशन और इरिटेशन, सो टॉक्सिटी रिलेटेड टू स्किन. 407 में क्या दिया है, ओरल टॉक्सिटी इन द रोडेंट्स. रोडेंट्स मतलब क्या है, चूहे. 407 में क्या दिया है, ओरल टॉक्सिटी इन द रोडेंट. ये एक्यूट नहीं है, क्या है, एक्यूट नहीं है. सो इट इज नथिंग बट रिपीटेड डोज स्टडी. ठीक है, रिपीटेड डोज में देना है उसको, नॉट अ सिंगल डोज. सिंगल डोज नहीं है, रिपीटेड डोज में देना है. सो 407 इज नथिंग बट द ओरल टॉक्सिटी स्टडी इन द रोडेंट्स. मतलब ये चूहे, रोडेंट्स में आता है आपका माइस एंड, ये आता है माइस आणि छोटा रैट आता है, रैट. सो माइस एंड रैट. सो ओरल टॉक्सिटी स्टडीज इन द रोडेंट, रिपीटेड डोज फॉर 28 days को स्टडी के लिए वो 407 गाइडलाइन है. सो दे यूज टू आस्क द क्वेश्चन, सो आइडेंटिफाई द गाइडलाइन, OECD which OECD guideline is there for acute oral toxicity studies. So acute oral toxicity. So 401 is a acute oral toxicity. 401. Then 402 is a for dermal toxicity, acute dermal. 403 is acute inhalation. 404 is acute dermal reactions. 405 is acute ocular reaction. ये eyes के रिलेटेड, ये eyes के रिलेटेड, ये lungs के रिलेटेड. 403. 2 किसके और 4 किसके रिलेटेड है, dermis, skin. 401 oral toxicity. 406 again skin. 246 यहाँ पे देखो, 402 ये सर्कल करता हूँ इसको मैं, 402, 402, 404. You have to remember 402, 404, 406. These are related with the, these are related with the skin. Acute toxicity in the skin. Okay, acute toxicity of skin. 401 में आता है ओरल. उसके बाद ओरल के बाद में क्या आएगा, जैसे ओरल होता है, ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में इनहेलेशन आता है, नजदीक है, तो ओरल 401 403 में इनहेलेशन. 405 में क्या आएगा, ऑक्यूलर रिएक्शन, मतलब ऑक्यूलर आईज में आएगा इरिटेशन. सो 101 acute oral toxicity, 102 dermal, 103 inhalation, 104 again dermal irritation reaction, 105 ocular reaction, one, okay, 405 skin sensitization irritation, 407 oral toxicity in a rodent for 28 days, repeated dose for 28 days. Now 408, 408 OECD guideline 408, उसमें क्या है कि ओरल टॉक्सिटी इन द रोडेंट्स, अगेन सेम बट फॉर 90 days, रिपीटेड डोज फॉर 90 days. 407 और 408 डिफरेंट क्या है कि डोज, रिपीटेड डोज 28 days होता है 407 में, और 408 में रिपीटेड डोज 98 days तक होता है. इन रोडेंट्स हो गए ओरल टॉक्सिटी. नाउ 420 क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था कोई जीपैट 2019 में. ओके, ओईसीडी गाइडलाइंस 420. 420 गाइडलाइन किसका है, so acute toxicity studies, fixed dose procedure, fixed dose procedure, acute toxicity studies, fixed dose procedure. So for not 420 OECD guidelines 420 is a acute toxicity studies, fixed dose procedure. क्वेश्चन आ चुका है जीपैट 19 में. गाइडलाइन नंबर 423, 423. So acute toxicity, toxic
class method, acute toxicity, toxic class method. OECD guidelines 425, acute toxicity up and down process. This was question in GPAT 2020. Last year का GPAT में एक क्वेश्चन था. 425 ICD guidelines, 425 OECD guidelines is nothing but the indicate acute toxicity study up and down process. तो यहाँ पे देखो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये. फिर से एक बार बोलता हूँ आपको. देखो यहाँ पे गाइडलाइन नंबर 420, OECD गाइडलाइन 420, acute toxicity study, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन. क्या है? फिक्स्ड डोज प्रोसीजर और फिक्स्ड डोज प्रोसीजर. सो फिक्स्ड डोज प्रोसीजर एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडी 420. 423 एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडी टॉक्सिक क्लास मेथड. ठीक है, टॉक्सिक क्लास मेथड है. जीपैट 2019 में 420 के बारे में पूछा है. ठीक है, नाउ जीपैट 425 क्या है? एक्यूट टॉक्सिसिटी अप एंड डाउन प्रोसेस. ओईसीडी गाइडलाइन 425 एक्यूट टॉक्सिसिटी अप एंड डाउन प्रोसेस. इसके बारे में जीपैट 2022 में पूछा है. अभी देखो, ये सिर्फ 3 लाइन है. 3 लाइन से 3 लाइन्स में 2 बार क्वेश्चन आया. क्वेश्चन आ सकता है आपको. यू हैव टू रिमेंबर 420 420 फसवेगिरी फिक्स डोज प्रोसीजर, फिक्स प्राइस. आम्हाला फक्त टॅग लावून दिला, एवढ्यालाच द्यायचं आहे ते. 420 ओईसीडी गाइडलाइंस इज फॉर फिक्स डोज प्रोसीजर. रिमेंबर जीपैट 2019 में पूछा है. ओईसीडी गाइडलाइन 423 दैट इज acute toxicity, again toxic class method. Then 425 acute toxicity up and down process. जीपैट 2022 में पूछा है. ओके, तो देखो एक चार्ट है. एक ही चार्ट के ऊपर 3 बार क्वेश्चन पूछा है. यहाँ पे 1 बार पूछा है, यहाँ पे 2 बार पूछा है. देन अगेन इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा है. गाइडलाइंस 451 टॉक्सिसिटी गाइडलाइंस 4 और ओईसीडी गाइडलाइंस 451. It deals with the oncogenic and carcinogenic studies. So whether your drug has some carcinogenic properties और ऑन्कोजेनिक प्रॉपर्टी. आपका जो ड्रग है, आपने जो नया ड्रग बनाया, उसको कोई कैंसर कॉजिंग करता है क्या? वो वेदर दैट इज अ कार्सिनोजेनिक, वेदर दैट इज ऑन्कोजेनिक. दैट्स काइंड ऑफ स्टडी इज डन अंडर द गाइडलाइन ऑफ 451 ऑफ द ओईसीडी गाइडलाइन. देन इसके बाद में पूछा है एक बार 452. सो ओईसीडी गाइडलाइंस 452. So it is for chronic toxicity studies. 452 is a chronic toxicity studies. So again I will repeat it. आपको रिपीट कर रहा हूं मैं. रिमेंबर 401 गाइडलाइन, ओईसीडी गाइडलाइन 401, ओईसीडी गाइडलाइन 401 acute oral toxicity. 402 is nothing but the acute dermal toxicity. 403 is acute inhalation toxicity. 404 is acute dermal reactions, that is in irritation and corrosion reaction. 405 is acute ocular reaction, that is again irritation corrosion. 406 is a skin sensitization irritation reaction. 407 OECD guideline 407 oral toxicity studies in the rodent repeated dose for 28 days. Now 408, okay, guideline number 408 again same oral toxicity in the rodent repeated dose for 90 days. OECD guidelines 420 acute toxicity studies fixed dose procedure. OECD guideline 423 acute toxicity studies toxic class method. 425 acute toxicity studies up and down process. Then 451 oncogenic or carcinogenic studies. 452 is nothing but the chronic toxicity studies. तो ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसके नोट्स जो है वो आपके एप्लीकेशन में एक्सेसिबल है. ठीक है, डोंट वरी. नाउ विल सी द नेक्स्ट पार्ट. डिफरेंट एजेंसीज, different countries and their regulatory agency. So first of all, what do you mean by regulatory agency? So right from beginning, okay, right from synthesis, preclinical studies, import, export, sales, okay, formulations. जैसे आपने कोई ड्रग बनाया, everything is under the watch of these guidelines, okay, under the watch of these agencies. So different drug regulatory agents. Regulatory agency means the regulatory agency is nothing but the organization or agency that control the every aspects of your drug. आप कोई ड्रग कोई कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कोई कौन सा भी ड्रग बेच नहीं सकता. उसके ऊपर सबके ऊपर वॉच रहता है किसका? रेगुलेटरी. सो कोई अगर ड्रग अप्रूव करना है, मार्केट में लाना है, तो यू हैव टू take a clearance from this regulatory agency. Regulatory agency will regulate the import, synthesis, marketing and use of drugs. So that is the regulatory agency. Every country has a different regulatory agency. हर एक कंट्री का अपना अपना एक regulatory agency. They laid down the norms. उनके एक norms होते हैं, उनके guidelines होते हैं. According to that guidelines only you have to manufacture your drug. जैसे यूएस के लिए, यूएस जो होता है यूनाइटेड स्टेट, उसके लिए उनका एजेंसी होता है यूएसएफडीए. अगर आपको इंडिया का कोई कंपनी है और वो बोल रहा है कि हमने ये
टैबलेट बनाया है, जैसे मान लीजिए हमने एंटी इमेटिक टैबलेट बनाया है और ये टैबलेट हमको यूएस में बेचना है, यूएस में मार्केट करना है, तो यहाँ के मार्केट, यूएस के मार्केट में हमको ये हमारा प्रोडक्ट बेचना है। तो ऐसा बोले मतलब हो गया, ऐसा नहीं। सो you will not able to sell your product in the US market unless and until your manufacturing unit is approved by US FDA. So whatever companies are there, आप जब जॉब को जाओगे तो आपको दिखेगा कंपनी के बाहर लिखा होता है WHO सर्टिफाइड, ISO सर्टिफाइड। कुछ कंपनी के बाहर लिखा होता है WHO ISO US FDA सर्टिफाइड, US FDA अप्रूव। कुछ कंपनी के बाहर लिखा है US FDA plus MHRA अप्रूव, TGA अप्रूव। So what TGA, what MHRA, what US FDA, what is CDSCO? So each and every country has their own regulatory agency which keeps eyes, which watch all the process of drugs, all the matters related to drug. So drug regulatory agency regulates the all the matters, all the concern about the drugs, right from the synthesis, testing in animal, okay, production, manufacturing, sale, distribution. So everything is monitored by this regulatory agency. So इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं आपको जीपेट में, नाइपर में, डीआई में. सो यू हैव टू क्लियर अबाउट इट. बहुत ईजी होता है. फर्स्ट इज नथिंग बट, फर्स्ट कंट्री इज नथिंग बट द यूएसए. और यूएसए विच रेगुलेटरी एजेंसी इज द यूएस एफडीए. यूएसए के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसका रेगुलेटरी एजेंसी होता है यूएस एफडीए, यूएस यूएस फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, व्हाट इज यूएस एफडीए? यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. सो इफ यू सपोज अगर आपने बी फार्म हो गया आपका, आपने कोई इंडस्ट्री डाल दिया, तो आपको लग रहा है कि मुझे ये मेरा जो बना रहा हूँ मैं टैबलेट्स, मेरी कंपनी में जो भी टैबलेट्स, कैप्सूल, सस्पेंशन जो भी बन रहा है, आई वांट टू मार्केट देम इन अ यूएस मार्केट, यूएस मार्केट में बेचना है. तो यूएस वाले तो बहुत गोरे लोग होते हैं, बहुत चालू होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं. वो बोलते हैं कि नहीं, ठीक है आपको बेचना है ना, बेच सकते हो आप, जितना अमाउंट लगाना है, जितना भी एमआरपी रखना है, डोंट मैटर, डजंट मैटर, आप जितना भी कॉस्टली लगाना है लगा लो. बस हमको क्या चाहिए बॉय, कि हमको देखना है कि आप बनाते कैसे हो, और हमको आप कैसे बनाते हो वो मैटर नहीं करता, वो हमको नहीं चाहिए. हमारा ये प्रोसीजर है कि हम ये प्रोसीजर लेट डाउन करेंगे आपको, हम ये गाइडलाइंस देंगे, इन गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली ही आपको बनाना है वो प्रोडक्ट. अगर आपको हमारे कंट्री में बेचना है तो हमारी सुननी पड़ेगी, अगर आपको हमारे इलाके में आना है तो हमारे इलाके के अकॉर्डिंग के ही लॉ. जैसे आप जाते हो, अगर आप तालिबान में गए, आप अफगानिस्तान में गए, तो आप इंडिया के हो, तो वहां पे ये नहीं बोल सकती सर उसने मुझे गाली दी तो मैं उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल करूंगा, ये नहीं चलेगा. वहां पे उनके रूल्स होते हैं. तो लाइकवाइज दैट इफ यू वांट टू मार्केट योर प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया टू अनदर कंट्री, so according to their country, whatever the regulations of that country is there, so you have to manufacture that product according to their guidelines. Your company should be certified, your company should be approved with the regulatory agency of that country. So that's why हर एक कंपनी के यहाँ से यूएस में नहीं जाता ट्रक. जैसे यहाँ पे औरंगाबाद में है माइलन फार्मास्यूटिकल्स है, दैट इज यूएस अप्रूव, यूएस एफडीए अप्रूव्ड प्लांट, एमएचआरए अप्रूव्ड प्लांट. सो माइलन फार्मास्यूटिकल्स में जो भी ड्रग्स बनते हैं वो सब यूएस में जाते हैं, माइलन फार्मास्यूटिकल्स में जो ड्रग बनते हैं वो सब यूके में जाते हैं, बिकॉज दैट इज अप्रूव्ड बाय यूएस एफडीए एंड एमएचआरए. ओके, लाइकवाइज दैट डब्ल्यूएचओ का भी अप्रूवेशन होता है, उसका अप्रूवल है. तो इंडिया में भी वो मार्केट करते हैं, लेकिन मोस्टली बाहर ही मार्केट करती है क्योंकि बाहर में ज्यादा पैसा मिलता है. अगर कोई कंपनी है कि डब्ल्यूएचओ अप्रूव्ड है सिर्फ, और सीजीएमपी अप्रूव्ड है, एमपी एंड डब्ल्यूएचओ अप्रूव्ड है, तो उसका मार्केट सिर्फ इंडिया में ही रहेगा, वो बाहर उसका वैल्यू नहीं, वो बाहर अपना प्रोडक्ट बेच नहीं सकता. फॉर सेलिंग और फॉर ए मार्केटिंग ऑफ ए ड्रग, वट एवर यू आर मैन्युफैक्चरिंग, इफ यू वांट टू मार्केट दैट ड्रग इन अ फॉरेन कंट्री, so there is a regulatory agency of each and every country. So if you want to market our product in another country, you have to follow the guidelines given by regulatory agency of concerned country. So likewise that for US or United States of America, you have US FDA, that is known as the US Food Drug Administration. So according to that, these guidelines, US FDA guidelines, you have to make your drug. Then only you can you can market your formulation in the drug, formulation of your formulation in the US country. अगर अमेरिका में आपको मार्केट में आपका ड्रग बेचना है, आपका फॉर्मुलेशन टैबलेट कैप्सूल बेचना है, तो उनके यूएसएफडी के अकॉर्डिंग ही आपको मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा
उनके अकॉर्डिंगली पैकिंग सब करना पड़ेगा और वो वहाँ पे फिर मार्केट कर सकते। लाइकवाइज दैट फॉर यूनाइटेड किंगडम, यूके के लिए ये जैसे होता है एमएचआरए। तो क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, विच इज द रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ यूएस, दैट इज यूएस एफडीए, ये तो सबको याद रहता है। विच इज द रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ यूके, सो एमएचआरए। सो व्हाट इज लॉन्ग फॉर्म, मेडिकल एंड हेल्थ प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी। एमएचआरए का एजेंसी का लॉन्ग फॉर्म क्या है, मेडिकल हेल्थ product regulatory agency, medical and health product regulatory agency. So likewise that every country, agar if you want to market your drug in the UK, so your plant should be approved by MHRA. अगर आपको यूके में मार्केटिंग करना है आपके ड्रग का, या फिर आपको यूके में सेल करना है आपके ड्रग का, आपकी कंपनी क्या होनी चाहिए, एमएचआरए अप्रूव्ड, मेडिकल एंड हेल्थ प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी। Then is likewise if you want to sell your formulation in the ऑस्ट्रेलिया, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में भेजना है आपके ड्रग्स और ऑस्ट्रेलिया में मार्केटिंग करना है, मार्केट देना है, मतलब ऑस्ट्रेलिया के मार्केट में आपका ड्रग चाहिए, जाना चाहिए, सो योर कंपनी शुड बी अप्रूव्ड बाय दिस एजेंसी, टीजीए, that is nothing but the therapeutic good administration. So TGA is the regulatory agency for Australia. Likewise in India, इंडिया का भी अपना खुद का रेगुलेटरी एजेंसी होता है। सो इन इंडिया देयर इज अ सीडीएससीओ, व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। देखो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सो सीडीएससीओ का लॉन्ग फॉर्म क्या है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। सो इन इंडिया दिस सीडीएसओ इज द एजेंसी व्हिच डील्स विद द मैटर्स रिलेटेड टू ड्रग्स। जो भी ड्रग्स का मैटर है, अब कोई वैक्सीन भी नया किसने बनाया, कोई कंपनी ने, तो डायरेक्टली उसको मार्केट नहीं कर सकते, उसको सीडीएससीओ का अप्रूवल लेना पड़ता है, उसका मान्यता लेना पड़ता है, उनके देखरेख में सब कुछ होता है, वो सब चेक करते हैं और बाद में ही उसका अप्रूवल हो जाता है। सो इन इंडिया सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन is the regulatory agency, okay, in India. This agency is under the Director General of Health Services, and so DGCO, Director General of Health Services, okay. Ministry of Health and Family Welfare, under Ministry of Family and Health Welfare, Government of India, उसके अंडर डायरेक्टोरेट ऑफ जनरल सर्विसेज, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज, एक ये डिग्नेटरी होती है, मतलब एक पोजीशन होता है, ये पोजीशन होता है, दैट इज नथिंग बट डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो डीजीएचएस, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, वो उसके अंडर में, किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके अंडर ये एजेंसी होता है सीडीएसयू, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस डील्स विद द एवरी मैटर्स रिलेटेड टू ड्रग्स इन इंडिया। तो इंडिया में तो याद रखो। और यूएस के लिए कौन सा एजेंसी है, यूएसएफडीए। यूके के लिए कौन सा है, एमएचआरए, दैट इज मेडिकल हेल्थ एंड प्रोडक्ट्स, मेडिकल एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स एजेंसी। ऑस्ट्रेलिया की होता है टीजीए, थेरेपेटिक गुड एडमिनिस्ट्रेशन। और इंडिया में होता है सीडीएसयू, सेंट्रल ड्रग रिसर्च कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। लाइकवाइज द यूरोपियन कंट्रीज में, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन जो कंट्रीज होते हैं, यूरोपियन यूनियन, तो उसके लिए कौन सा है, ईएमए। ईएमए क्या है, ईएमए यूरोपियन मेडिकल और यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, ईएमए यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी। वो उसके पहले ये था ईडीक्यूएम, यूरोपियन डायरेक्टोरेट फॉर क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, यूरोपियन डायरेक्टोरेट क्वालिटी मेडिसिन, ये था पहले। अभी क्या है, ईएमए ईरोपियन मेडिसिन एजेंसी। तो ये अगर ऐसा पूछा कि रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो अगर दोनों ऑप्शन है तो बोथ ऑफ द अबव लिखो, ईएमए एंड ईडीक्यूएम। ईएमए मतलब यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी एंड ईडीक्यूएम मतलब यूरोपियन डायरेक्टोरेट क्वालिटी मेडिसिन, यूरोपियन डायरेक्टोरेट फॉर क्वालिटी मेडिसिन। लाइकवाइज चाइना के लिए कौन सा एजेंसी है, एनएमपीए, चाइना के लिए एनएमपीए, नेशनल मेडिकल प्रोडक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एनएम, नेशनल मेडिकल प्रोडक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। इसके पहले ये अभी नाम चेंज किया है उसका, एनएमपीए, पहले ये था सीएफडीए, पहले ये क्या था, सीएफडीए, चाइना फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सो सीएफडीए नाउ इट इज renamed as a एनएमपीए, नेशनल मेडिकल प्रोडक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। चाइना का भी कौन सा है, नेशनल मेडिकल प्रोडक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ये रेगुलेटरी एजेंसी, पहले उसका सीएफडीए था, मतलब वही एजेंसी है, उसका सिर्फ नामकरण चेंज किया, सीएफडीए, चाइना फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जापान के लिए कौन सा है, पीएमडीए, तो जापान के लिए होता है पीएमडीए। तो ये क्वेश्चन मुझे पूछा था वेन मैं जब फर्स्ट टाइम
लुपिन R&D के लिए इंटरव्यू को गया था. When I was there in a interview for Lupin, that is R&D position. उसमें मुझे एक क्वेश्चन पूछा था, रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ जापान. तो उस टाइम पे मुझे नहीं आया था, क्योंकि मुझे उस टाइम पे सिर्फ मालूम था यूएस का, यूके का, ऑस्ट्रेलिया का एंड इंडिया का. जो पहले चार है उतने ही मुझे मालूम थे, बाकी मालूम नहीं थे. ओके, सो उस टाइम पे मुझे एक क्वेश्चन नहीं आया था और मैं रिजेक्ट हो गया था. ठीक है. सो फेल्योर भी है, इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में. अगर वहाँ पे R&D में काम करते बैठता तो मैं आपको पढ़ा नहीं. सो PMDA, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस एजेंसी. PMDA, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस एजेंसी. PMDA इज फॉर जापान. जापान का रेगुलेटरी एजेंसी कौन सा है? PMDA. याद रखो, PMDA इज अ रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ जापान. फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस एजेंसी. नाउ नेक्स्ट क्या है? कनाडा. कनाडा के लिए कौन सा है? TPD, थेरेपेटिक प्रोडक्ट डायरेक्टरेट इन द हेल्थ. TPD, कनाडा का रेगुलेटरी एजेंसी होता है TPD. कनाडा का होता है TPD, थेरेपेटिक प्रोडक्ट डायरेक्टरेट इन द हेल्थ. HPFB मतलब फूड ब्रांच ऑफ हेल्थ कनाडा. वही दोनों है, TDP एंड HPFB. अभी फ्रांस के लिए कौन सा है? इन केस ऑफ फ्रांस, फ्रेंच एजेंसी फॉर सेफ्टी ऑफ हेल्थ प्रोडक्ट. फ्रेंच एजेंसी फॉर सेफ्टी ऑफ हेल्थ प्रोडक्ट. तो ये तो इंग्लिश में नाम है. अभी ये उनका वहाँ का नाम जो है ये ऐसा है, AFSSAPS. अभी इसका लॉन्ग फॉर्म जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज में. ठीक है, तो इसलिए मैंने वो लिखा नहीं है. इसका जो लॉन्ग फॉर्म है वो फ्रेंच लैंग्वेज में. ये एक जनरल आप बोल सकते हो, फ्रेंच एजेंसी फॉर सेफ्टी ऑफ हेल्थ प्रोडक्ट. ये उसका मीनिंग है. ये जो है एजेंसी AFSSAPS, इसका कुछ लॉन्ग फॉर्म है फ्रेंच लैंग्वेज में. उसका मतलब क्या है कि फ्रेंच एजेंसी फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोडक्ट. सो इट इज द फॉर फ्रांस. नाउ जर्मनी के लिए कौन सा है? फेडरल इंस्टीट्यूट फॉर ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस. फेडरल इंस्टीट्यूट फॉर ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइस. उसके जैसे ही ये इनका एजेंसी है BFARM. BFARM, तो इसका भी एक लॉन्ग फॉर्म है, वो जर्मन लैंग्वेज में है. उसका ट्रांसलेशन क्या है कि फेडरल इंस्टीट्यूट फॉर ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस. लाइकवाइज ब्राजील के लिए होता है नेशनल हेल्थ सर्वाइलेंस एजेंसी, ANVSA एंड विसा. तो ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा है इसके बारे में. ये तीनों के बारे में तो बहुत बार पूछा है. ठीक है, ये तीन चार मेरे तीन चार जीपैट में भी आते हैं. आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन भी पूछेंगे कि कौन सा किसका एजेंसी है, मैच करो. या फिर डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखो. स्विट्जरलैंड का होता है स्विस मेडिक, स्विस एजेंसी फॉर ड्रग्स एंड मेडिकल प्रोडक्ट, स्विस मेडिक. सिंगापुर का होता है HSA, हेल्थ साइंस अथॉरिटी. सो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग रेगुलेटरी एजेंसीज, कंट्रीज एंड देयर रेगुलेटरी एजेंसीज. तो USA का होता है USFDA, यूके का होता है MHRA, ऑस्ट्रेलिया का होता है TGA, इंडिया का होता है CDSO, यूरोपियन गाइडलाइन, यूरोपियन यूनियन का होता है EMA और EDQM, चाइना का होता है NMPA और CFDA, जापान का होता है PMDA, कनाडा का होता है TPD, फ्रांस का होता है, ठीक है, AFSSAPS, जर्मनी का होता है BFARM, ठीक है, ब्राजील का होता है एनविसा, स्विट्जरलैंड का होता है स्विस मेडिक, सिंगापुर का होता है HSA. ठीक है, these are the different countries and their regulatory agencies, which is very very important. Again, you have to remember this. Okay, ये याद रखना है. Now next part is nothing but the few important regulatory terms. ठीक है, ये टर्म्स के बारे में क्वेश्चन आ चुके हैं बहुत बार, तो ये टर्म्स मैंने समराइज किया है यहाँ. सो व्हाट डू यू मीन बाय IND? सो फ्यू इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी टर्म्स. इसमें बहुत सारा है. जैसे IND में पूरा डिस्क्रिप्शन रहेगा 2 पैराग्राफ का आपका. तो 2 पैराग्राफ का डिस्क्रिप्शन की बजाय मैंने सिर्फ एक लाइन में आपको क्लियर करने के लिए, रिवाइज करने के लिए रखा है. So what is IND? Long form is nothing but the investigational new drug application. Investigational new drug application. IND का मतलब क्या है? Investigational new drug application. So it is an application made to FDA for legal testing of new drug in the humans in the US. अगर आपका नया ड्रग है, if you want to test that new drug for humans, okay? नया ड्रग है, humans में टेस्ट करना है, तो वो ड्रग को बोलते, उसको बोलेंगे IND, investigational new drug application. It is an application made to a FDA for getting a legal permission for testing of a new drug in the human. तो IND होता है. NDA क्या है? NDA means new drug application.
NDA means new drug application. So second one is the NDA. NDA means National Defense Academy. वो नहीं है, वो NDA अलग है, ये NDA अलग है. So it is a new drug application. ये new drug application होता है. New drug application NDA. So it is again an application to the US FDA to market a new drug or pharmaceutical to the sale in the US. US में अगर आपको सेल करना है तो आपको NDA अप्लाई करना पड़ता है. You have to apply new drug application. It is an application to the US FDA. US FDA US में अगर आपको ड्रग सेल करना है तो you have to apply to the US FDA for new drug application NDA. NDA फाइल पूरा बनाना होता है. उसमें INDA जैसे NDA तो NDA अगर आपको IND अगर फाइल करना है US को तो उसमें सब आपको प्री क्लिनिकल डाटा देना पड़ता है. आपका ड्रग सिंथेसिस पूरा फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज सब ड्रग का जितने भी इवेल्युएशन किए आपने वो सब इवेल्युएशन. तो व्हाट एवर डाटा यू हैव स्टडीड यू हैव टू गिव टू द USFDA. पूरा उसमें प्री क्लिनिकल स्टडीज भी मतलब माइस जो जिसके भी ऊपर क्या है फ्रॉग्स माइस गिनी पिग्स डॉग्स वगैरह. सो उसका सबका डाटा उसका सबका रिजल्ट वगैरह सब आपको देना पड़ता है यूएस के लिए. एंड देन ओनली यूएस if they are satisfied with the data provided by a investigator they approve this application known as a IND application. So they will give you a written permission to test your drug in a human subject in US. तो यूएस वाले बहुत खतरनाक होते हैं. अपने लोगों को ऐसे ही आपके हाथ में नहीं देंगे. तो वो पूरा चेक करते हैं कि आपका ड्रग क्या है आपने डाटा क्या दिया है वो डाटा कितना रिलायबल है आपने प्रोसीजर क्या जो भी टेस्टिंग किया है एनिमल्स में वो सब सही है या नहीं उसका एफिकेसी कितना है सब चेक करेंगे और बाद में अपने लोगों के ऊपर इस्तेमाल करने का परमिशन देंगे. ठीक है. एंड व्हेन यू विल फाइंड दिस IND इज इफेक्टिव. अगर इन्वेस्टिगेशनल ड्रग अगर ह्यूमंस में भी इफेक्टिव है तो उसके लिए न्यू उसका फिर पूरा इवेल्युएशन करके फिर उसका मार्केटिंग कर सकते हैं. तो अप्लाई करना पड़ता है NDA. IND के बाद में आपको IND के बाद में क्लिनिकल ट्रायल्स का स्टडी करना पड़ता है. ओके. इफ योर IND इज अप्रूव्ड दैट मीन्स your drug is now ready to face the clinical trials to test the drug in a human. And after getting a satisfactory result in the clinical trials, now you can apply or you can formulate that drug and now you can apply for NDA, new drug application. So new drug application is the again application to US FDA to market a new drug or pharmaceutical in to sell in the US. So preclinical data has to be submitted along with the prescribed format. NDA का application करना पड़ता है आपको न्यू ड्रग का application. तो उस टाइम पे आपको पूरा क्लिनिकल स्टडीज और क्लिनिकल ट्रायल्स का डाटा आपको देना पड़ता है. जैसे IND होता है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग. तो ये क्या है कि इसमें आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अभी ड्रग अप्रूव नहीं किया है आपको. तो अप्रूव नहीं किया मतलब क्या इन्वेस्टिगेशन किया आपने कि आपने ड्रग किसके ऊपर टेस्ट किया आपने ड्रग किया टेस्ट आपके एनिमल्स के ऊपर. सो एनिमल्स का स्टडी मतलब क्या प्री क्लिनिकल स्टडीज. सो while filing the IND or while applying for IND you have to submit all the preclinical data and if they are satisfactory they will grant the permission to test the investigational drug in humans that is a clinical trials का आपको परमिशन मिल जाएगा. वो सब क्लिनिकल ट्रायल्स करना पड़ेगा आपको. उसके बाद में अगर रिजल्ट आया आपका if your results are satisfactory then you have to apply for NDA. So new drug application again application to the US FDA to market a new drug or pharmaceutical product to sell in the US. So obviously इसके ऊपर clinical data जो है clinical studies का data you have to submit clinical studies data. Then next term is ANDA. So ANDA क्या है abbreviated new drug application. ANDA क्या है abbreviated new drug application. Now applicable for the generic version of drugs. मान लीजिए कि आपने कोई नया ड्रग जैसे IND सब करके सब रिसर्च करके IND करके NDA किया फिर आपने सबमिट किया आपका मार्केट में है बट वो आपने रिसर्च किया है तो आप ही का ड्रग है आपकी कंपनी का रिसर्च किया हुआ है मॉलिक्यूल है तो आप ही की कंपनी के सोल प्रॉफिटेबल पर्सन आप ही हो. मतलब जो जैसे पेटेंट के लिए आप अप्लाई करते हो NDA के बाद में पेटेंट अप्लाई करते हो. पेटेंट मिलने के बाद में आपको 20 इयर्स का सिक्योरिटी मिल जाता है कि 20 इयर्स का 20 साल तक आपका प्रोडक्ट जो है आपका जो ड्रग है आपने जो रिसर्च करके बनाया है तो 20 साल तक दूसरा कोई बना नहीं सकता. सिक्योरिटी होता है. फॉर दैट सिक्योरिटी यू हैव टू अप्लाई फॉर पेटेंट. इफ योर पेटेंट इज ग्रांटेड दैट मीन्स योर प्रोडक्ट इज सिक्योर फॉर 20 इयर्स. तो 20 साल में जितना मुनाफा छापना है छाप सकते हो. कोई आपको ऊपर
रोक टोक नहीं रही, क्योंकि वो मोनोपोली होता है, वो आपका रिसर्च का मॉलिक्यूल होता है। 20 ईयर्स तक आप उसके ऊपर कितना भी कमा सकते हो, ठीक है। बट आफ्टर 20 ईयर्स, when there is a expiration of patent, when patent is expired, so everybody is looking for that, कि ये मॉलिक्यूल इतना चल रहा है तो उसका जेनरिक वर्जन बनाना है। सो एवरी अदर कंपनीज और अदर रिसर्चर्स, दे विल मैन्युफैक्चर दैट ड्रग। 20 ईयर्स के बाद में वो सिक्योरिटी खत्म हो जाता है, फिर तक आपको दूसरा कोई बना नहीं सकता। अगर बनाया तो आपने उसके ऊपर लीगल सूट फाइल कर सकते हो। लीगल सूट मतलब कोर्ट में कंप्लेंट कर सकते हो कि ये मेरा पेटेंट है, इसने बनाया अभी, तो उसके ऊपर फाइन लग जाएगा, उसका सब बंद भी हो सकता है। सो 20 साल तक, 20 साल के बाद में वो एक्सपायर हो जाता है, देन ड्रग सबके लिए खुला हो जाता है, तो एनीबडी कैन मैन्युफैक्चर दैट ड्रग। कई साल बाद, साल पहले कुछ नहीं कर सकते, 20 साल बाद ही बदलना है। सो 20 साल बाद पेटेंट एक्सपायरी होता है, 20 साल के बाद आप जो भी आपको फॉर्मुलेशन बना है, तो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पेटेंट दैट ड्रग इज कॉल्ड एज जेनरिक ड्रग। नाउ ANDA इज नथिंग बट द एब्रिविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। नाउ अगर किसी का पेटेंट एक्सपायर हुआ है रिसेंटली, अगर जाइडस का लगा बहुत सारा मॉलिक्यूल, बहुत कमा लिया उसने, वो अभी वो पेटेंट एक्सपायर हो गया उसका, तो आप क्या करते हो, फटक से वही मॉलिक्यूल सिंथेसिस करते हो, मार्केट के लिए डालना है। लेकिन ऐसा नहीं कि पेटेंट एक्सपायर होने के बाद में इमीडिएटली आपको मिल जाएगा परमिशन। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पेटेंट, you have to formulate that drug, you have to apply for abbreviated new drug application। आपको अप्लाई करना पड़ेगा, सर इसका पेटेंट खराब एक्सपायर हो चुका है, अभी अभी हमको चांस दो, इसने तो वो छाप लिया, अब हमको छापना है, तो आपको एप्लीकेशन करना पड़ता है FDA को, and that is nothing but the ANDA, abbreviated new drug application। So abbreviated new drug application is nothing but the applicable for generic version of drug, no need to submit clinical and preclinical data। अभी ANDA क्या है कि ऑलरेडी पेटेंटेड होता है, तो उसने सब कुछ ऑलरेडी सबमिट किया है कि प्री क्लिनिकल डाटा, क्लिनिकल डाटा सब कुछ दिया है उसने, तो इसके लिए फिर से प्री क्लिनिकल डाटा वगैरह करने की जरूरत नहीं, क्योंकि R&D तो उसने किया है ऑलरेडी, 20 साल उसका फायदा भी उठाया उसने, तो उसके लिए ये सब नहीं करना है। सो abbreviated new application, abbreviated new drug application applicable for generic versions of drug only, no need to submit clinical as well as pre-clinical data, only bioavailability and bioequivalence studies data you have to submit। तो मतलब आपने आपके हिसाब से वो बना लिया आपकी कंपनी में, तो आप बोल रहे हैं सर इसका पेटेंट एक्सपायर हो चुका है और अभी हमको चांस भी मिलना चाहिए, हम लोगों को भी, अभी कंपटीशन होगा, उसका भी होगा और हमारा भी होगा, जो बेटर होगा वो, उसमें जो प्राइस कम रहेगा वो, ठीक है, जो भी मार्केटिंग वगैरह बाद में आता है। सो उसके लिए बायो इक्विवेलेंस एंड बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज, ठीक है, मतलब जो ओरिजिनल पेटेंटेड फॉर्मुलेशन है उसका बायो अवेलेबिलिटी, बायो इक्विवेलेंस आपके फॉर्मुलेशन के साथ में, इसका स्टडी देना पड़ता है, उनको डाटा देना पड़ता है। Abbreviated new drug application applicable for generic version of drug only, no need to submit any clinical and preclinical data, only bioavailability and bioequivalence studies data is submitted। 180 days exclusivity, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। 180 days exclusivity, so 180 days of market exclusivity to the first generic applicant, first generic applicant। तो ऐसा नहीं है कि आप आपने बोला तो उन्होंने मान लिया, ठीक है। जैसे आप बोल सकते ना सर उसका हो गया एक्सपायर, हालांकि हालांकि उसका हुआ भी नहीं है, तो अगर हुआ नहीं और आपको ग्रांट किया तो क्या वो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो उसके लिए क्या होता है कि when you apply for ANDA, so your application is considered and 180 days market exclusivity is given। 180 दिन तक टाइम दिया जाता है, पब्लिकली नोटिस किया जाता, नोटिस दिया जाता है पेपर्स में, ऑफिशियल सर्कुलर्स में, कि यार ये अभी पेटेंट एक्सपायर हो चुका है, इसका क्या करना है, जेनरिक वर्जन इन्होंने अप्लाई किया है, तो इसके ऊपर किसी को आपत्ति है क्या। सो आफ्टर 180 days market exclusivity to the first generic applicant who challenges a listed patent by filling in a section on paragraph 4 under the हैच वैक्समन एक्ट। तो ये हैच वैक्समन एक्ट होता है फॉर जेनरिक ड्रग ओनली, उसके अंडर पैराग्राफ नंबर 4 में जो एप्लीकेशन है वो उसके फॉर्मेट में देना पड़ता है। सो ओके, नाउ इफ विद इन 180 डेज नोबडी क्लेम्स, 180 दिन में कोई किसी ने क्लेम नहीं किया कि नहीं ये गलत है, ये ऐसा है, सो वो उसको ग्रांट किया जाता है, ANDA इज ग्रांटेड। सो एब्रिविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन applicable for generic version of drug only, no need to submit clinical preclinical data, bioavailability bioequivalence data you have to submit, okay, and 180-day exclusivity is given after the application to the first generic applicant। Now challenges, no, okay,
चलें, okay, if there is no any claims or complaints then it is granted. अगर पेटेंट जिसका है उसने अगर उसने उसका अगर पेटेंट एक्सपायर हो चुका है तो वो ऑब्वियसली कुछ नहीं बोलेगा. अगर उसका पेटेंट एक्सपायर नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, ये करेगा, क्या करेगा, इम्प्रिजमेंट सूट. इम्प्रिजमेंट सूट मतलब मेरा पेटेंट है तो कैसे यूज कर रहे हैं, एक्सपायर नहीं हुआ है तो उसके ऊपर वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है. तो इम्प्रिजमेंट, पेटेंट इम्प्रिजमेंट सूट बोलते हैं उसको. सो ही कैन फाइल द पेटेंट इम्प्रिजमेंट सूट विद इन 180 days. अगर 180 days में उसने ऐसा कुछ नहीं किया तो दैट ये वाला जो एप्लीकेंट है उसको एप्लीकेशन ग्रांट हो जाएगा. ओके, एंड ही कैन मेक अ जेनरिक ड्रग ऑफ दैट वर्जन, जेनरिक ड्रग ऑफ दैट पेटेंटेड. नाउ नेक्स्ट पार्ट, ऑरेंज बुक. इसके ऊपर भी जीपैट 2020 में क्वेश्चन आ चुका है. ये एएनडी के ऊपर जीपैट 2022 में क्वेश्चन आ चुका है. मैंने बोला था कि मैंने एक वीडियो डाला था उसमें 2-3 क्वेश्चन कवर हो चुके. सो ऑरेंज बुक क्या है, वही जीपैट 2020 में क्वेश्चन आया है. सो ऑफिशियल टाइटल ऑफ अप्रूव्ड ड्रग विद थेरापेटिक इक्विवेलेंस इवैल्यूएशन नोन एज ऑरेंज बुक. तो ऑरेंज बुक क्या है, देखो, ऑफिशियल टाइटल, ऑफिशियल बुक होता है ये, ऑफिशियल टाइटल ऑफ अप्रूव्ड ड्रग्स विद द थेरापेटिक इक्विवेलेंस इवैल्यूएशन. तो ये जो बुक होता है ऑरेंज बुक, इसमें क्या रहेगा, जेनरिक ड्रग रहेंगे जो जो कि थेरापेटिक इक्विवेलेंट है. ओके, सो ऑफिशियल टाइटल अप्रूव्ड विद द थेरापेटिक इक्विवेलेंस इवैल्यूएशन नोन एज ऑरेंज बुक. तो इसको ऑरेंज बुक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका कवर क्या होता है, ऑरेंज कलर का होता है. द ऑरेंज बुक ऑफिशियल टाइटल फॉर अप्रूव्ड ड्रग विद थेरापेटिक इक्विवेलेंस इवैल्यूएशन known as a orange book due to its orange colored cover. ओरिजिनल जो प्रिंट वर्जन था वो उसका कवर ऑरेंज कलर का था, इसलिए उसको ऑरेंज बुक बोलते हैं. नाउ व्हाट इज इट, यूएसएफडीए लिस्ट ऑफ ऑल अप्रूव्ड ड्रग एज अ सेफ एंड इफेक्टिव. इट इज ऑथराइज्ड सोर्स ऑफ ड्रग्स विद थेरापेटिक इक्विवेलेंस. मतलब सॉल्ट ये नहीं है, जैसे फेरस फ्यूमरेट, फेरस एस्कॉर्बेट, तो ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल है लेकिन उनका काम है थेरेपेटिक. क्या है, थेरेपेटिकली क्या है, इक्विवेलेंट है, उनका यूज सेम ही है. सो लाइक वाइज दैट इट इज ऑथराइज्ड सोर्स ऑफ फॉर ड्रग विद थेरेपेटिक इक्विवेलेंस. थेरेपेटिक इक्विवेलेंट ऑफ ड्रग लाइक न्यू ड्रग एप्लिकेशंस, ओटीसी ड्रग्स, एएनडीएस. थेरेपेटिक इक्विवेलेंट कोड्स आर गिवन. याच्यामध्ये कोड, उनको कोड भी दे जाते, थेरेपेटिक इक्विवेलेंट कोड. फॉर एग्जांपल कोड ए फॉर सब्स्टिट्यूट एंड कोड बी इज गिवन फॉर नॉन सब्स्टिट्यूटेबल. मतलब जितने भी ड्रग्स है, ड्रग की लिस्ट रहेंगी उसमें ऑरेंज बुक में, तो उसको अगर उसके आगे कोड है ए मतलब उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, और अगर उसके सामने बी कोड है तो उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है. सो दैट इज ऑरेंज बुक. क्वेश्चन आता है. उसके बाद में 2-3 बुक और भी होते हैं. ग्रीन बुक. सो ग्रीन बुक इज नथिंग बट द लिस्ट ऑफ ड्रग ऑथराइज्ड फॉर विच जेनरिक वर्जन अवेलेबल. तो लिस्ट ऑफ ड्रग्स ऑथराइज्ड फॉर विच जेनरिक वर्जन इज अवेलेबल. ऐसे कितने ड्रग हैं जिनके लिए जेनरिक वर्जन अवेलेबल है, उन सब की लिस्ट किस में रहेंगी, ग्रीन बुक में रहेगी. नाउ ब्लू बुक. FDA requirement of the law and regulation enforced by US FDA is continued from. ओके, तो इसमें क्या है ब्लू बुक में, FDA रिक्वायरमेंट एंड लॉज एंड रेगुलेशन एनफोर्स्ड बाय यूएस FDA. तो रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशन किस में रहेंगे इसके लिए रिगार्डिंग, जो भी ब्लू बुक में रहेंगे. ये जो ऑरेंज बुक के रिगार्डिंग, ग्रीन बुक के रिगार्डिंग जो भी रेगुलेशंस है यूएस FDA के, वो ब्लू बुक में रहेंगे. नाउ आजकल ये ब्लू बुक क्या है, डिसकंटिन्यू किया है. सो ब्लू बुक इज डिसकंटिन्यूड फ्रॉम अक्टूबर 2002. ब्लू बुक अभी नहीं है लेकिन वो पढ़ने के लिए है. पढ़ने के लिए आप कितने बुक है देखो, ऑरेंज बुक है, ग्रीन बुक है, ब्लू बुक है. कलरफुल बुक पढ़ो अच्छे से. नाउ नेक्स्ट इज हैच वैक्समन एक्ट. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं बहुत सारे. हैच वैक्समन एक्ट, ये क्या है, हैच वैक्समन एक्ट. इट इज द एक्ट, इट इज अ सिनोनिम फॉर द ड्रग प्राइस कंपटीशन एंड पेटेंट रेस्टोरेशन एक्ट. It is a synonym of Drug Price Competition and Patent Restoration Act. It is a synonym for Drug Price Competition and Patent Restoration Act 1984. जब पेटेंट एक्सपायर होता है तो anybody can synthesize and that will go into generic version. तो उसके रिलेटेड कौन सा एक्ट है, हैच वैक्समैन एक्ट. इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बहुत बार पूछा है. Synonym for Drug Price Competition and Patent Restoration Act. Okay, so it is a landmark act in US for generic drugs in USA. तो अगर पेटेंट एक्सपायर होने के बाद में जेनरिक ड्रग सबको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो प्रोसेस है वो इस एक्ट में दिया है. ओके,
So Hatch-Waxman Act is nothing but the acts applicable for generic. Using this act, generic drugs makers they can file ANDA application for approval of generic drugs in accordance with the paragraph 4 of the act. जो paragraph 4 होता है के अंदर उसके accordingly वो फाइल करेंगे and which allows the 180-day exclusivity to companies that are the first to file the ANDA. अगर किसी ने फर्स्ट सबसे पहले जो ANDA फाइल करेगा उसको 180 दिन का टाइम दिया जाता है. उसके अगेंस्ट में 180 दिन में अगर कोई जो ओरिजिनल वाला कंपनी है उसने अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया तो उसको जेनरिक ड्रग एप्लीकेशन उसका पास हो जाए. हैच वैक्समन एक्ट इज अ अमेंडमेंट ऑफ फेडरल फूड एंड ड्रग कॉस्मेटिक which establishes the modern system of approval of generic drugs. तो हैच वैक्समन एक्ट याद रखो. एएनडीए के बारे में याद रखो. ऑरेंज बुक के बारे में याद रखो. क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुके हैं. नाउ विल सी द नेक्स्ट आईसीएच गाइडलाइंस. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है. आईसीएच गाइडलाइंस. So what do you mean by ICH guidelines? So इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन. तो एक दो एग्जाम में जैसे ड्रग इंस्पेक्टर होता है या फिर आपका फार्मासिस्ट एग्जाम होता है उसमें लॉन्ग फॉर्म भी पूछा है उसका. सो आईएसएच गाइडलाइन आईसीएच गाइडलाइन. सो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन. इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन. So ICH guidelines means International Conference on Harmonization. So it is a technical requirement for pharmaceuticals फॉर ह्यूमन यूज. ओके ये आईसीएच के अकॉर्डिंगली गाइडलाइंस है. क्या है उसमें टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स फॉर फार्मास्यूटिकल्स फॉर ह्यूमन यूज. तो ह्यूमन यूज के लिए यूज करने के लिए वो ड्रग या फिर फार्मास्यूटिकल्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट होने चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट उसने फुलफिल करना चाहिए, तब जाके उसको ह्यूमन यूज के लिए परमिशन कर सकते हैं. सो दैट इज गिवन बाय आईसीएच गाइडलाइंस. सो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन. It is a technical requirement for pharmaceuticals for human use. It was first published in the April 1990. क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है. First ICH guidelines was published in the April 1990. Now these guidelines are accepted by several countries and there are four types of guidelines given by ICH. ये जो guidelines है ये बहुत सारे countries ने accept किया है कि ये नहीं है, सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं, तो इनके accordingly बनाना चाहिए. होता है ना सलाह देने के लिए सलाह सूचक कंपनी, तो ये वैसे ही है ICH guideline. So international conference on. So these guidelines they were first published in the 1990 April 1990, accepted by several countries, and these there are four types of guideline. First is nothing but the quality guideline. Second one is nothing but the safety guideline, and third one is nothing but the efficacy guidelines. Safety guidelines. Last one is a multidisciplinary guidelines. इसमें चार टाइप के गाइडलाइंस होते हैं. देयर आर फोर टाइप्स ऑफ गाइडलाइन. पहला होता है क्वालिटी गाइडलाइंस. जो क्वालिटी गाइडलाइंस है जिसके अंडर क्वालिटी के अंडर जितने भी गाइडलाइंस है उसको टर्म दिया है क्यू. फर्स्ट लेटर होगा उसका क्यू. क्यू मतलब क्वालिटी गाइडलाइंस. सेफ्टी गाइडलाइंस जो है उसका पहला लेटर होगा यस. ठीक है, यस मतलब सेफ्टी गाइडलाइन. यस 1 यस 2 वगैरह वैसे ऐसा. इफिकेसी गाइडलाइन के लिए भी ऐसा ही रूल है. E1 E2 E3 E4 5. ओके लाइक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी गाइडलाइंस उसके लिए यम होता है. सो विल सी वन बाय वन. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है. क्वालिटी गाइडलाइंस. ठीक है, रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. ओके क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट वो गाइडलाइंस कौन से. सो Q1 is nothing but the stability testing as per ICH guidelines. Quality Q1 is nothing but the stability testing. Q1 guidelines under the ICH guidelines describe the procedure for stability testing और guidelines for stability testing. Q1 क्या है stability testing. Q2 मतलब quality again quality. Q2 describe the analytical validation. Q3 describe the impurities. Q4 describe the pharmacopoeia. Q5 biotechnological product. Q5 is for biotechnology. Q6 acceptance criteria for the test. होता है ना जैसे आपने देखा होगा कि लिमिट्स जैसे होता है प्रोबेबिलिटी का लिमिट कितना होता है 0.5 टू 1%, नॉट मोर देन 0.5 टू 1%. तो वो लिमिट किसने दिया, क्यों दिया, वो कौन डिसाइड करता है. एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर द टेस्ट प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी गाइडलाइन 6 ऑफ आईसीएच क्वालिटी गाइडलाइन 6 एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर द टेस्ट प्रोसीजर. देन उसके बाद में एक होता है Q7 इज नथिंग बट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस. Q8 होता है फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट. Q9 होता है क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. Q9 guideline quality guideline number 9 as per the ICH, so that deals with the quality risk management. Q10 deals with the pharmaceutical quality system. Q11 development and management of new drug substance.
Q12 life cycle management, Q13 continuous manufacturing, Q14 analytical process development. ये हो गई क्वालिटी गाइडलाइंस. अभी सेफ्टी गाइडलाइंस कौन सी है? सेफ्टी गाइडलाइंस में आता है ES1 is nothing but the carcinogenicity studies. According to ICH guideline, ES1 is a deals with the carcinogenicity studies, cancerous study, oncogenic studies. Then ES2 deals with the genotoxicity studies. Genotoxicity studies, मेल फीमेल के ऊपर क्या स्टडी है? सेफ्टी गाइडलाइन नंबर 3, ES3 deals with the toxicokinetics and pharmacokinetic studies. ES4 deals with the toxicity testing. ES5 deals with the reproductive toxicology. ये ES2 जो है जीनोटॉक्सिक स्टडी. ES2 क्या है? जीनोटॉक्सिक स्टडी डील्स विद द टॉक्सिटी टू द योर न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए. डीएनए आरएनए को डैमेज करता है क्या? वो चेक करने के लिए कौन सा गाइडलाइंस है? जीनोटॉक्सिटी स्टडी. जीनोटॉक्सिटी स्टडी, जीनोम का टॉक्सिटी. रिप्रोडक्टिव टॉक्सिटी जो होता है थैलिडोमाइड क्या करता है? फोकोमेलिया. Thalidomide is a carcin. It is a teratogenic in nature. So that study is done in the ES5. According to the ES5, मतलब safety guideline number 5 as per ICH. ES6 क्या है? Biotechnological product. ES7 क्या है? Pharmacological studies. ES8 immunotoxicological studies. ES9 non-clinical evaluation of cancer. Then ES10 photo safety evaluation. ES11 नॉन क्लिनिकल पीडियाट्रिक स्टडी. तो ये जैसे क्वालिटी गाइडलाइंस होता है, क्वालिटी गाइडलाइंस Q1 टू Q14, सेफ्टी गाइडलाइंस लाइक ES1 टू ES11, उसकी जैसे इफिकेसी गाइडलाइंस होते हैं. सो E1 E2 E3 E4 E5 E18. तो देयर आर 18 गाइडलाइंस. इफिकेसी गाइडलाइंस आर मोस्टली रिलेटेड टू फार्माकोविजिलेंस एंड क्लिनिकल ट्रायल्स. जो एफिकेसी गाइडलाइंस होता है वो क्लिनिकल ट्रायल्स के रिगार्डिंग है या फिर विजिलेंस के रिगार्डिंग है. सो दे आर नॉट डिस्कस्ड ओवर देयर. उसको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो बुक्स में. एफिकेसी गाइडलाइंस आर मोस्टली रिलेटेड टू फार्माकोविजिलेंस एंड क्लिनिकल ट्रायल्स. देयर आर 18 गाइडलाइंस. कितना है? 18 है. जैसे ये कितना है? क्वालिटी गाइडलाइंस 14 है. क्वालिटी गाइडलाइंस कितना है? 14. सेफ्टी गाइडलाइंस कितना है? 11. उसकी जैसे एफिकेसी गाइडलाइंस है आपका 18. नाउ आईएसओ स्टैंडर्ड्स. ठीक है, आईएसओ स्टैंडर्ड इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है. ISO standards. What is ISO? It is nothing but the international standard for organization. ISO, International Standard for Organization. ISO. तो आपने देखा होगा जो भी जैसे आपने आपके घर में फैन लाया या फिर कोई आयरन लाया मतलब इस्त्री या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक हीटर या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज लाया, उसके ऊपर लिखा है ISO सर्टिफाइड, ISO 9000 सर्टिफाइड, ISO 5001 certified, ISO 9001 to 2008 certified. So that is a standard. ISO is one of the standard. Okay, that gives the standard. Okay? So ISO is nothing but the international standards for organization. It was started in the February 1947. पहले स्टार्ट हुआ था 1947 में. And it is a independent non-government organization over the 163 countries, and it has published around 19,500 in standards for industry. हर एक इंडस्ट्री में ये ISO होता है. अपने फार्मा में भी, फार्मा इंडस्ट्री में भी होता है. कंपनी में जब जाओगे तो उसके ऊपर लिखा होता है ISO 9001 सर्टिफाइड. मतलब वो स्टैंडर्ड है एक उसका. ओके, सो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन. इट इज अ independent non-government organization which are spread over 163 countries. They published 19,500 standards for every industry. So headquarters of ISO, इसके ऊपर क्वेश्चन आया. Headquarters of ISO is at Central Secretariat at Geneva. जिनेवा में होता है उसका, जिनेवा स्विट्जरलैंड. क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईएसओ लोकेटेड? कहाँ पे होता है हेडक्वार्टर आईएसओ का? सीक्रेटेड इन जिनेवा स्विट्जरलैंड. इंडिया में भी आईएसओ है, लेकिन इंडिया का आईएसओ जो है उसको क्या बोलते हैं? BIS. इंडिया में जो आईएसओ है उसको बोलते हैं BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड. उसको आईएसओ इंडिया बोलते हैं. So उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ISO 9000 डील्स विद द क्वालिटी मैनेजमेंट. ISO 9000 डील्स विद द क्वालिटी मैनेजमेंट. ISO 1001 deals with the energy management. 31,000 deals with the risk management. 22,000 deals with the food safety and management. ISO 3166 deals with the country codes.
ISO IEC 27001 deals with the information security and management. ISO 2 lakh 121 deals with the sustainable event. ISO 1400 deals with the environment management. I think ये क्वेश्चन जीपैट 2021 या 22 में आया था. ISO 1400 एनवायरमेंट मैनेजमेंट. तो एनवायरमेंट मैनेजमेंट के लिए ISO का स्टैंडर्ड कौन सा है? ISO 1400. इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ चुका है. स्टैंडर्ड्स इन ISO फैमिली. तो ISO 9001 2008. It deals with the set of requirement for the quality management system. QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है या नहीं? अगर ISO 9001 to 8 सर्टिफिकेट है आपके पास तो उसका मतलब आपके फर्म में कंपनी में क्या है? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम. ISO 9000 2005. It is a basic concept and language. ISO 9000 2009 9004 2009 focus on how quality management system can be most efficient and effective. Again, ISO 19011 and 2011. 1 lakh, okay, 1 lakh 9011 2011 setup for in standard for internal and external audits for quality management system. तो सेटअप क्या क्या होना चाहिए ऑडिट्स के लिए, वो किस में दिया है? तो ये कभी कभी क्वेश्चन आता है. इसके ऊपर कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद ही रखना पड़ता है. बाय चांस अगर आपका नसीब कुछ कुछ टाइम इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है. फिलोसॉफीज ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. फिलोसॉफीज ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम. बहुत सारे फिलोसोफर्स है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स है, उन्होंने क्या क्या बोला है क्वालिटी मैनेजमेंट. सो एक्सपर्ट, okay, expert tell you how to achieve the quality of your product. Quality management system, total quality management system, TQM. Total quality management system and philosophy for constant organizational improvement in order to